हेलो, गुड मॉर्निंग, ओ सॉरी, गुड इवनिंग टू ऑल। आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So just wait. I allow to all the students. Then we start the session. Clear? Just wait. सभी को आवाज आ रही बेटा? सभी को मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. Okay. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Just wait. Okay, so I think we all are connected now. So today we start with the fourth experiment. Here, I'm just sharing the file. Okay, just wait. सभी को लिस्ट दिख रही है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? फाइल शेयर किया No. सभी को दिख रहा है? Please, Yes, it sir. is going to share. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So in the previous three labs, basically we have discussed experiment number 4 as a first experiment. Then we have discussed the logic design, basically the verification of truth table for various logic gates. So experiment 9 is considered as a second experiment here. And then we have done PN junction diode for half and full wave rectification. Here measurement of RMS voltage, DC voltage and ripple factor as experiment number 3. Now we come to the fourth experiment, that is according to this lab activity, which is belong to the sixth one, that is the characteristics of Zener diode. Clear? And I think you all are aware with the Zener diode. Zener diode के बारे में सुना है आप लोगों ने? Have you heard about Zener diode? Okay. Yes. नहीं सुना है. Okay, कोई बात नहीं. So in this basically we start with the Zener diode. Clear? Basically it works in the reverse bias condition. Clear? So ये reverse bias में work करता है. ठीक है? So तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या करना है? So characteristics of Zener diode basically, and measure the characteristics of Zener diode. We just measure the forward and reverse resistance with the help of this. Clear? So voltage regulation is also achieved in this. So I will show you. Clear? So VI characteristics, we should take care of that, and graphical measurement of forward and reverse resistance would be measured. Clear? So I'm just going to start. So we have the link that is provided. Virtual lab link is provided in the just in front of that. You can see we have the link that is given. So if I click on this link, we can directly access to the virtual lab page. So I have already opened that page, so I just show you the page directly. Also, all of you are also requested kindly mark your attendance as well. सभी लोग अपनी attendance जरूर mark कर दीजिएगा. सभी लोग अपनी attendance जरूर mark कर दीजिएगा. You all are requested to mark your attendance. Clear? Am I audible properly to all of you? सभी को आवाज आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Okay, so before going to start, I just want to give you some overview because overview is important regarding this Zener diode. So पहले मैं आपको बता देता हूँ ये Zener diode होता क्या है, clear? So if you see, एक पेज हमने शेयर किया, आप सभी को दिख रहा होगा, शेयर किया, दिख रहा है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So before going to the simulation part, I just want to give you an overview. You will also study this in your subject as well, in electronics engineering as a topic you will also study, but just want to give you some overview because this subject it is covered as a you can say the topic clear in the lab also. So if you see if I talk about this, so if you see we have a circuit like this. So before going to start the circuit, I just want to give you an overview regarding Zener diode. So Zener diode is basically also known as breakdown diode. Clear? इसको हम breakdown diode भी कहते हैं. ये बेसिकली रिवर्स बायस में वर्क करता है. दिस जैसे हमारा जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है वो आपने देखा था उसकी फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर? तो अगर हम जेनर डायोड की बात करें, ये स्पेशली डिजाइन्ड है, स्पेशल डायोड है, बेसिकली ये हमारा रिवर्स बायस के लिए वर्किंग के लिए डिजाइन है, जो कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हमारा बिहेव प्रॉपर्ली नहीं कर पाता क्योंकि वो ब्रेकडाउन रीजन में इतना एफिशिएंट नहीं है वर्क करने के लिए, ठीक है? तो वी यूज एग्जैक्टली द जेनर ब्रेकडाउन फॉर द ब्रेकडाउन रीजन, क्लियर? सो इस डायोड का कुछ आप डायग्राम देखेंगे, सिंबल देखेंगे, कुछ ऐसा होता है, क्लियर? इट हैज a स्ट्रक्चर लाइक जेड स्ट्रक्चर ये शो करता है, क्लियर? सो this is exactly a symbol you can see. This is having a jet type symbol, clear? So p diode will be similar to the normal pn junction diode, but the n side will be of jet like structure, clear? And we apply the input voltage over here, clear? जाना And तो है ही सर, उस पे भी आएगा अभी. so it has the range between 0 to Vz, means this input voltage having the range between this breakdown voltage and 0. This Vz is what? This is breakdown voltage. So input voltage basically exactly provides the on-off condition for this Zener diode, clear? So if you compare this input voltage V with the Vz, that is the breakdown voltage, Vz से अगर हम V को compare करेंगे, then we can decide it will on or off, clear? So if the condition lies between, means हमारा जो ये V है, ये अगर Vz से ज्यादा होता है, it should be greater than or equal to Vz. ये जो V है, V is the input voltage, ये basically reverse bias voltage है, clear? क्योंकि reverse bias में work कर रहा है तो input voltage would be the reverse bias voltage. ये जो voltage हम input पे दे रहे हैं, ये जब इस जेनर वोल्टेज से बराबर हो या इससे ज्यादा होगा तो ये हमारा डायोड ऑन हो जाएगा. इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सर्किट एनालिसिस, क्लियर? सो ये जो इनपुट वोल्टेज है, जब ये इस जेनर वोल्टेज से बराबर हो या इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है रिवर्स बायस में जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द डीसी वोल्टेज एट द इनपुट साइड. जब ये ज्यादा होगा तभी या इसके बराबर होगा तो ये हमारा डायोड ऑन होगा, क्लियर? अगर ये भी हमारा लेस देन Vz होगा तो हमारा डायोड ऑन ही नहीं होगा, क्लियर? तो ऑन एंड ऑफ कंडीशन दो होती हैं. ऑन होने के लिए हमको इनपुट वोल्टेज को ग्रेटर देन इक्वल टू Vz होना जरूरी है, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? और ऑफ कब होगा? जब ये इनपुट वोल्टेज लेस देन Vz होगा, ठीक है? इज इट क्लियर? ये हमारी ऑन ऑफ कंडीशन है. और नॉर्मली अगर मैं बात करूं ये होता क्या है, क्लियर? सो पहली बात है, ये हमारा एक स्पेशल डायोड है जो कि रिवर्स बायस में वर्क करता है. जब हम इसको हाईली डोप्ड करते हैं, क्या करते हैं? रिवर्स बायस में नॉर्मली क्या होता है, डोपिंग हमारी कम होती है, लेकिन हम इस केस में क्या करते हैं, जेनर डायोड के केस में डोपिंग बहुत बढ़ा देते हैं, क्लियर? आप सभी ने पढ़ा होगा नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस में हमारा डिप्लीशन लेयर जो होता है वो छोटा होता है और रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर लार्ज होता है, ठीक है? तो
स्पेशल डायोड जो जेनर डायोड हम डिजाइन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वर्क तो ये रिवर्स बायस में करता है, लेकिन हम इसमें डोपिंग को बढ़ा देते हैं। वी जस्ट इंक्रीज द डोपिंग इन एनफ अमाउंट, हम इसको बहुत ज्यादा डोपिंग बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, डोपिंग जब ज्यादा हो जाती है तो डिप्लीशन लेयर का साइज कम हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायस में ज्यादा होना चाहिए, वो डोपिंग करने से, हाईली डोपिंग करने से डिप्लीशन लेयर का साइज कम हो जाता है। क्लियर? ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट होता है एट नियर द जंक्शन, जिसकी वजह से multiplicative amount of carriers, minority carriers are produced, which evolves in the reverse current. Clear? वही हमारी reverse current produce करते हैं। Clear? Due to multiplicative amount of what? Charge carrier. Clear? So तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो फील्ड ही हमारा क्या करता है, उसी फील्ड की वजह से करंट डेवलप होती है, जो जंक्शन के नियर हमारा प्रोड्यूस होता है, और वही हमारा करंट, उसी की वजह से हमें रिवर्स करंट मिलती है। क्लियर? सो जेनर डायोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो मेनली क्या है कि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम इसको मेनली यूज करते हैं। व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेटर? आप लोगों को पता है, जैसे नॉर्मली जो घर में रेगुलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज देते हैं। इनपुट आपका भले चेंज हो रहा हो, इनपुट मींस योर एसी सिग्नल। क्लियर? सपोज यू आर गिविंग सम एसी सिग्नल in your house, your power supply is getting, so in basically जो हमारा इनपुट आ रहा है स्टेबलाइजर को, दैट इज व्हाट वेरिंग, वो इनपुट हमारा वेरी कर रहा है, लेकिन वो जो आउटपुट दे रहा है वो स्टेबलाइज होके दे रहा है। आउटपुट इज स्टेबलाइज, इसीलिए हम उसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, बिकॉज योर आउटपुट इज व्हाट स्टेबल एज द इनपुट इज चेंजिंग। इनपुट आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, इनपुट बढ़ भी जाएगा, घट भी जाएगा, लेकिन आउटपुट विल आल्सो मेंटेन, आउटपुट हमेशा मेंटेन रहेगा। इसका फायदा क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन ब्रेकडाउन्स नहीं होते हैं। क्लियर? जैसे आपका कट ऑफ मतलब सर्किट ब्रेक नहीं होती है। क्लियर? इस पे सर्किट को डैमेज होने से बचाने के लिए ही हम या एक तरह से कह सकते हैं वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं आउटपुट। क्लियर? जिससे इनपुट के फ्लक्चुएशंस आउटपुट को अफेक्ट ना करें। तो एग्जैक्टली जेनर डायोड मेरा हमारा मेनली वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज वी आर, इसमें दो केस होते हैं, एक होता है इनपुट को वेरी कराना और एक होता है लोड को वेरी कराना। और दोनों को वेरी कराने से, एक बार इनपुट वेरी कराएंगे, लोड को फिक्स रखेंगे, एक बार लोड के क्रॉस करंट वेरी कराएंगे और इनपुट को फिक्स रखेंगे। बट दोनों ही केस में अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जेनर डायोड स्टेबल है। ठीक है? वोल्टेज रेगुलेशन अचीव हो रहा है। आर यू गेटिंग? सभी को बेटा समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, ये देखिए, ये इसका मेन Yes, कॉन्सेप्ट sir. है। ओके, ये जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। शंट रेगुलेटर का मतलब होता है कि हम जेनर डायोड को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जेनर डायोड हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलना है इट इज वर्किंग एज ए शंट रेगुलेटर। क्लियर? सो ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आप थियरी में भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, एंड यू विल आल्सो मेक इट क्लियर। क्लियर? वहाँ पे भी आपसे ये चीजें क्लियर की जाएंगी सब्जेक्ट टीचर से। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये इसकी वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट है। ये सर्किट अभी हम लोग सिमुलेशन वाले पार्ट में भी देखेंगे, जब सिमुलेशन की बात करेंगे। ये आपका इनपुट वोल्टेज है, सर्किट आपको दिख रही होगी, यही आपकी वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट है। क्लियर? दिस इज द, यही सर्किट हमको सिमुलेशन में ड्रॉ करनी होगी, बनानी होगी। ठीक है? तो यहाँ आप देखिए, एक इनपुट वोल्टेज है जिसको हम सोर्स वोल्टेज बोलेंगे, ये Vs से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हमारी, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, इसको Rs लिख रहे हैं हम। इस सीरीज रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगी वो Is होगी, दैट इज द सीरीज करंट। ये हमारा जेनर डायोड है जो कि हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं, इसका वोल्टेज क्या है, Vz है। ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। रिवर्स बायस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसका एन साइड है और ये इसका पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव बैटरी नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज रिवर्स बायस। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब इसके बाद इसमें देखिए बेटा, जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जेनर डायोड हो गया, पैरेलल में कनेक्ट है इनपुट के साथ। क्लियर? ये Is करंट है जो सीरीज रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है, इसको हम सीरीज करंट बोल रहे हैं।
ये हमारी IZ है जो कि जिनर करंट है, जो कि जिनर डायोड में फ्लो कर रही है, ठीक है। एक यहाँ पे हमारा और लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि जिनर डायोड के पैरेलल कनेक्टेड है। इसमें जो करंट जा रही है वो IL जा रही है, लोड करंट, क्लियर। और ये आपका लोड वोल्टेज है VL, जिसको हम आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहीं पे हमको वोल्टेज रेगुलेशन अचीव होगा लोड वोल्टेज पे, क्योंकि मतलब लोड वोल्टेज हमारा फिक्स आना चाहिए। कहने का मतलब ये लोड वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब वो चेंज क्या, दो कंडीशन हम कौन सी बता रहे थे। एक कंडीशन है कि एक बार हम इनपुट को वेरी कराएंगे, ये जो सोर्स वोल्टेज इसको वेरी कराएंगे और इसको फिक्स रखेंगे, इस लोड करंट को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, दो कंडीशन है, एक बार हम इनपुट को वेरी कराएंगे लेकिन लोड करंट को चेंज नहीं करेंगे, मींस लोड के क्रॉस करंट विल बी फिक्स। और उस पे देखेंगे कि हमें अगर VL हमें कांस्टेंट मिल रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अचीव हो रहा है, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, इनपुट को फिक्स कर देंगे, इस वोल्टेज को फिक्स कर देंगे, चेंज नहीं करेंगे, और इस IL को वेरी कराएंगे। इस IL को वेरी कराएंगे तो हम देखेंगे, मतलब इस लोड के क्रॉस जो करंट है वो वेरी करेगी, तो हम देखेंगे तब भी हमारा लोड वोल्टेज फिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब हमें रेगुलेशन अचीव हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है सभी को। Yes, sir. दोनों ही केस Yes, sir. आउटपुट हमारा चेंज, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए इसमें तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस भी आपको ध्यान रखनी होंगी। ये तीन इक्वेशंस कैसे बनी है, पहला आप लूप लगा लीजिए यहाँ पे। इफ यू अप्लाई द लूप इन दिस फर्स्ट सेक्शन, इसमें अगर आप लूप अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली KVL आप लोगों ने पढ़ा होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अगर वो आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, VS is equal to ISRS plus VZ। गेटिंग माय पॉइंट, VS is equal to IS into RS plus VZ। तो ये आपका लूप बन गया। समझ में आ रहा है बेटा सभी को। Yes, sir. Yes, sir. VS is equal to ISRS plus VZ। तो ये हमारा पहला लूप, इससे लूप से आ गया हमारा, KVL लगाने से हमको पहली इक्वेशन मिल गई। ये देखिए VS is equal to ISRS plus VZ। यहाँ से आप सोर्स करंट निकाल सकते हैं, IS क्या हो जाएगा, VS minus VZ upon RS। दिस विल गिव यू द सोर्स करंट, क्लियर। नाउ इसके बाद आप देखिए VS हमने बताया इनपुट DC है, इसको हम अनरेगुलेटेड वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि आप इनपुट पे क्या दे रहे हैं, अनरेगुलेटेड वोल्टेज देंगे और आउटपुट पे आपको रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा। अनरेगुलेटेड का मतलब जो चेंज हो रहा हो, ठीक है, और रेगुलेटेड का मतलब जो फिक्स हो, क्लियर, ये चीज है। और दूसरी इक्वेशन आप कहाँ से बना सकते हैं, दूसरी इक्वेशन आपको दिख रही होगी यहाँ, VL is equal to VZ plus IZ RZ। ये कहाँ से मिल रहा है बेटा, ये हमको यहाँ से मिल रहा है, ये जो लोड के क्रॉस हम बनाएंगे। तो VL is equal to VL, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये VL is equal to VZ plus IZ RZ, क्लियर। ये कहाँ से मिला हमें, ये VL is equal to VZ plus IZ RZ, क्लियर। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। और दूसरा हमारा जो है एक लास्ट में ये आप ये भी कह सकते हैं, जो लोड वोल्टेज होगा वो ऑलमोस्ट इस जिनर वोल्टेज के बराबर ही होगा, क्लियर। जो जिनर वोल्टेज होता है वही ऑलमोस्ट लोड वोल्टेज होता है, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल ही हैं, पैरेलल कनेक्टेड है। तो जो भी लोड ये I into RL होगा ये BL के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें इस पॉइंट पे अगर आप KCL अप्लाई करेंगे, ये नोड है आपका जहाँ पे तीन ब्रांचेज मिल रही हैं, एक ब्रांच एक ब्रांच एक ब्रांच। KCL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट IS है और आउटगोइंग करंट कौन सी है, IZ और IL है, जो इस नोड को लीव कर रही है। देखिए IL भी बाहर जा रही है यहाँ से, ठीक है। तो IS इज इक्वल टू हो जाएगा IZ प्लस IL, ठीक है। IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL। KCL अप्लाई करेंगे तो आपको एक इक्वेशन ये मिल जाएगी, IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। और IL इज इक्वल टू VL बाई RL, अभी मैंने आपको बताया ही था। ये हमारे कुछ कैलकुलेशन पैरामीटर्स हैं जो आपको फाइंड करने में मदद करेंगे। अब जो कंडीशन हम आपको बता रहे थे वो ये बता रहे थे, ये देखिए पहला केस होता है रेगुलेशन व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज वेरीड, जब हम लोड रेजिस्टेंस को वेरी करा रहे हैं। ये देखिए इनपुट, मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को, सॉरी पहले हम Yes. पहले केस में देखिए, ये देखिए ये तो सेकंड केस है। पहला केस है जब हम इनपुट को वेरी करा रहे हैं, रेगुलेशन व्हेन इनपुट वोल्टेज इज वेरीड। और दूसरा केस है जब हम लोड रेजिस्टेंस को वेरी करा रहे हैं। तो ये देखिए दोनों की सर्किट्स हैं। एक बार देखिए इनपुट को वेरी करा रहे हैं, लोड को फिक्स रखा है, ठीक है, तो हमने रेगुलेशन अचीव कर लिया यहाँ पे।
और दूसरी सर्किट में आप देखेंगे कि ये इनपुट हमारा फिक्स है और ये लोड को वेरी करा रहा है। ठीक है, जहां हमने एरो, ये जो एरो लगाया हमने, ये वेरिएशन का साइन है। यहाँ आप देखिए इनपुट वेरी कर रहा है, यहाँ लोड वेरी कर रहा है, और इस केस में भी हमारा बीएल फिक्स मिल रहा है। ठीक है, यही दोनों केस हम लोग को डिस्कस करना है, इसी को शंट रेगुलेशन कहते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, जैसे आउटपुट वोल्टेज ऑफ जनरल रेगुलेटर इज इक्वल टू Vz, दिस इज ए कांस्टेंट वोल्टेज, देयरफॉर these voltage regulators कैन नॉट मेड एडजस्टेबल। दूसरा है लार्ज पावर गेट्स डिसिपेटेड इन द सीरीज रजिस्टर आर। थर्ड वन इज corresponding to large change in the load current, there will be large changes in the general current, this will result in a large power wastage। clear? so ये कुछ limitations भी हैं इसके। लेकिन अब हम आते हैं डायरेक्टली अपने सिमुलेशन पार्ट पे। ये हमारा कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने आपको पहले कवर करा दी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, ये पेज सभी को दिख रहा है बेटा? ये सभी को दिख रहा है, ये जो मैंने अभी शेयर किया है? Yes, इज sir. इट विजिबल? Yes, sir. ओके, Yes, जब हमने sir. उस लिंक Yes, ओके sir. जैसे Yes. मैंने उस ओके जैसे मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, कुछ बेसिक चीजें आप लोग को समझ में आ गई बेटा? ऑन ऑफ कंडीशन, वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें वही चीज करनी है, इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक फंडामेंटल समझा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इतना आपको समझ में नहीं आता, थोड़ा मैंने थियोरेटिकल आपको ओवरव्यू दे दिया इसका, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा ये। ठीक है, ये देखिए ये हमारी सर्किट है, ये दिस इज द सर्किट। थियरी का पार्ट हमने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ये हमारा कोई बहुत वो नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो जेनर ब्रेकडाउन होता है वो 6 वोल्ट से कम में होता है। कितने से? 6 वोल्ट से कम पे जेनर ब्रेकडाउन होता है। क्लियर? और एक एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो 6 वोल्ट से ज्यादा पे होता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? जो कि हम जेनर ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा 6 वोल्ट से कम पे ही हो जाएगा। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है, मतलब रेंज हमारा वही 6 वोल्ट के आसपास रहता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द फिक्स्ड वैल्यू, ये 5.9 5.8 भी हो सकता है, लेकिन ये 6 के आसपास ही रहता है, इसलिए हम ऑन एवरेज उसको 6 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेकडाउन हमारा मोस्टली 6 के आसपास होता है। थियरी पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, अभी मैंने आपको समझा दिया ये सब चीजें। ये सिंबल होता है जेनर डायोड का, इसमें जो जेड जेड आप देख रहे होंगे, ये जो जेड फॉर्म बना हुआ है, ये जेनर डायोड का सिंबल है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में ये प्लेन लाइन होती है। ठीक है, लेकिन जेनर डायोड में यही चीज हमारा जेड के फॉर्म में बन जाता है। जेड का मतलब ये जेनर। क्लियर? सिंबल का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ये वोल्टेज रेगुलेशन की सर्किट है, अभी हमने आपको समझाया था ये। ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये आपका देखिए, ये वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रखा है इन्होंने, ये आप भी लगा सकते हैं। लोड वोल्टेज इज इक्वल टू होता है जनरल वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ लोड रेजिस्टेंस पैरेलल वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आरएस प्लस आरएल। ये आपका वोल्टेज डिवीजन रूल है नॉर्मली, ये आप सिंपली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप लूप लगा के डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, वही सारी चीजें हैं इसमें। देन वी कम टू प्रोसीजर पार्ट। प्रोसीजर भी हम आपको ये आपका प्रोसीजर है जो कि अभी हम आपको करके बताएंगे। इसमें सारे टर्म्स आपको दिए हुए हैं, सो नो इशू विल बी देयर। क्लियर? सो दोनों कंडीशन हम लोग वेरीफाई करेंगे, देन वी कम टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। क्लियर? सो वी स्टार्ट विद द सिमुलेशन। डायरेक्टली सिमुलेशन पे आते हैं। सिमुलेशन में आप देखेंगे, पहले हम जेनर डायोड एज ए लाइन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। वी हैव दिस सर्किट नाउ। सर्किट यहाँ पे तो सर्किट बनी हुई है, और आप चाहें तो सर्किट ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए जेनर डायोड लाइन रेगुलेशन ड्रॉ द सर्किट भी आ रहा है, तो आप सर्किट ड्रॉ वाला भी ऑप्शन चूज करके सर्किट ड्रॉ करके फिर से आप उसको रन करा सकते हैं, या आप डायरेक्टली बनी हुई सर्किट को भी रन करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों खोल रखा है, आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ करने का मेथड आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी गिवन है। सो इंस्ट्रक्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा। सभी को दिख रहा है बेटा ये पेज Yes, जो sir. मैंने शेयर किया है? लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कैसे आपको ये सर्किट Yes, sir. कनेक्ट करनी है, तो आप सर्किट बना के भी पहले एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो। इसका स्क्रीनशॉट आपको लगाना होगा जब आप मैनुअल लिखेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है,
सीधे आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वैसे से कनेक्ट करिए। पहली वाली लाइन को तीसरी वाले लाइन से, L4 को L7 से, L8 को L15 से, L15 को L10 से, तो ऐसे ऐसे हम लोग कनेक्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी जस्ट कनेक्ट इट। फिर हम लोग इसकी वैल्यू सेट करेंगे। तो पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए L1 को L3 से कनेक्ट करना, तो L1 को L3 से कनेक्ट कर दिया। ठीक, L4 को L7 से कनेक्ट करना है, तो L4 हमारा ये है, L4 को L7 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर L8 को L15 से कनेक्ट करना है, L8 को L15 से कनेक्ट कर दिया। ठीक, L15 को L10 से कनेक्ट करना है, तो L15 को L10 से कनेक्ट कर दिया। L11 को L17 से कनेक्ट करना है, इसको हमने L17 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद L16 को L18 से कनेक्ट करना है। L16 कहाँ है बेटा, देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, L16 को L18 से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है इसके बाद L17 को L5 से कनेक्ट करना है। L17 हमारा ये है, इसको हम सीधे वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे क्योंकि आउटपुट हमें वोल्ट मीटर से लेना है, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। क्लियर, इसके बाद L18 को L6 से कनेक्ट करना है। L18 कहाँ है हमारा, ये रहा। L18 को हम L6 से कनेक्ट करेंगे ग्राउंड वाले रेफरेंस वोल्टेज से। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें L13 को L15 से कनेक्ट कर दीजिए। ये जो 13 है इसको हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे, L15 से कनेक्ट करेंगे। L15 कहाँ है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है ना, L13 को हमने L15 से कनेक्ट कर दिया। क्लियर, इसके बाद L14 को L19 से कनेक्ट करना है। L14 हमारा ये रहा, L14 को L19 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद L9 को L16 से कनेक्ट करना है। L9 हमारे पास कहाँ, ये रहा। L9 को हम L16 से कनेक्ट कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, L12 को L9 से कनेक्ट करना है। L12 कहाँ है, ये रहा। L12 को L9 से कनेक्ट कर देना। ठीक है, now now you can check the circuit that it is correct or not. Here, so if you check the connection, okay, set, अब इसमें दिखा रहा राइट कनेक्शन, सभी को दिख रहा होगा बेटा, कनेक्शन इज राइट। Yes, sir. ओके, राइट कनेक्शन दिखा रहा है। ये कनेक्शन जो मैंने किया है, अब इसमें लिख के आ रहा है सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये आप कनेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैसे कैसे कनेक्ट करना है पहली लाइन में, तो ये आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे। वैसे ही मैंने कनेक्ट भी किया है एग्जैक्टली। ये सर्किट एकदम एग्जैक्टली आपकी यही सर्किट है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली सर्किट। ठीक है ना, यही सर्किट है जो हम लोग वहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। अब इसमें लिख के आ रहा है कि जब मैंने चेक कनेक्शन पे किया तो इसने बोला सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट डीसी वोल्टेज। अब रेजिस्टेंस और इनपुट डीसी वोल्टेज हमको सेट करना है। ठीक है, इसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कैसे आप कैसे सेट करेंगे। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए जो फोर्थ पॉइंट है वहां देख सकते हैं आप, जिनर वोल्टेज हम सेट करेंगे 5.1 वोल्ट। तो जैसे जैसे ये बोल रहा वैसे वैसे आप सेट कर दीजिए। क्योंकि हम 5.1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था 6 वोल्ट से कम पे ही ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम 5.1 ले लेते हैं जिनर वोल्टेज। ये डीसी वोल्टेज, ये तो हम वेरी कराएंगे। हम जिनर वोल्टेज को ले लेते हैं 5.1 से। तो देखिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। एक मिनट, जस्ट वेट। ओके, ये देखिए यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप सर्किट में, ये जो जिनर वोल्टेज है, जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे जो दिख रहा होगा सभी को, जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं 5.1 तक लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, ये अभी जैसा इसमें बोला वैसा वैसा हम कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 5.1 दिख रहा है बेटा सभी को, यहाँ देखिए जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 5.1 दिख रहा है, ये जिनर वोल्टेज हो गया। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या सेट करना है, सीरीज रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ देख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है, आरएस को 1 किलो ओम सेट करना है। तो सीरीज रेजिस्टेंस हम 1 किलो ओम सेट करेंगे। देखिए ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस है, आरएस जो लिखा है इसको हम कितना सेट करेंगे, 1 किलो ओम। जब हम ये चेंज करेंगे तो कहाँ चेंज दिखेगा आपको, यहाँ चेंज दिखेगा। ठीक है, अभी देखिए इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए 1 किलो ओम में कितने ओम बेटा, 1000 ओम। ठीक है, इसको 1000 तक ले आएंगे। ये देखिए
1000 आ गया। ओम में हमारा 1 किलो ओम इज 1000 ओम, तो 1000 ओम दिखा दिया यहाँ पे, तो 1000 ओम हमारा आर सेट हो गया। ठीक, अब आर एल कितना रखना है, 2 किलो ओम। आर एल हमारा ये है लोड रेजिस्टेंस, इसको 2 किलो ओम कर देंगे, इसको भी हमने 2 किलो ओम में 2000 ओम। ठीक है, देखिए ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हैं आप, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आरएल सेट हो गया। यहाँ देख सकते हैं आरएल की वैल्यू कितना दिखा रहा है, 2 किलो ओम, दैट इज 2000 ओम। ठीक है, आरएल सेट हो गया। अब हमको क्या करना है, डीसी वोल्टेज को वेरी कराना है, जो ऊपर वाला वोल्टेज, अब हम इसको वेरी कराएंगे। ठीक है, जब डीसी वेरी कराएंगे, ये आपकी टेबल है, ये टेबल आपकी तब फॉर्म होगी जब आप सारी चीजें ऐड टू टेबल करेंगे। जब ऐड टू टेबल करेंगे तो ये चीजें टेबल में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए अभी मैं ऐड टू टेबल करता हूँ, एक मिनट, अच्छा अभी मैं इसको जब रन कराऊंगा तभी आएगा। ठीक है, एक मिनट अभी रुक जाइए। ओके, अब हाँ देखिए, अब हमें डीसी वोल्टेज सेट करना है। डीसी वोल्टेज को हम वेरी कराएंगे, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे बेटा, आवाज आ रही सभी को, हेलो? Yes. Yes sir. डीसी वोल्टेज को हम 0 से लेके 20 वोल्ट तक वेरी कराएंगे। ठीक है, ये देखिए डीसी को हमने वेरी कराना शुरू किया। इसको जब हम वेरी कराएंगे, पहले आप थोड़ा जीरो वैल्यू ले लेंगे, जीरो भी ले सकते हैं आप, जीरो हमने मान लीजिए ले लिया। ठीक है, तो जीरो पे तो कुछ मिलेगा नहीं, ऐड टू टेबल किया तो देखिए जब हमने इनपुट वोल्टेज जीरो लिया, देखिए पहली रीडिंग आ गई है, सारी वैल्यूज आपको दिखा रहा होगा। जनरल वोल्टेज 5.1, आरएस आपका आ गया 1 और आरएल आ गया 2 किलो ओम, ये जैसा हमने आपको सेट किया था। यहाँ सबको दिख रहा है बेटा, लेफ्ट साइड में जो टेबल है, जैसे मैंने ऐड टू टेबल किया, रीडिंग आ गई, Yes, sir. सबको दिख रहा है बेटा। Yes, अभी sir. हमारा कोई रेगुलेशन नहीं अचीव हो रहा, नो रेगुलेशन इज देयर। ठीक है, NAN दिखा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे, डीसी वोल्टेज को हमें 20 वोल्ट तक ले जाना है मैक्सिमम तक। ठीक है, तो हम डीसी वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाएंगे, जीरो से हमने थोड़ा बढ़ाया, जीरो से हम मान लीजिए इसको एक मिनट 1.2 वोल्ट तक ले गए। ठीक है, कहाँ तक ले गए, 1.2 वोल्ट तक। ये रीडिंग भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए 1.2 पे हमको वोल्टेज रेगुलेशन कितना मिल रहा है, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन इज 100। क्लियर, 100% वोल्टेज, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं। अब हमने कितना कर दिया, 3.8 कर दिया। ठीक है, या आप कुछ और भी कर सकते हैं, थोड़ा और भी कम कर सकते हैं, 2, ये देखिए 2.4 कर दिया हमने। ठीक है, 2.4 पे देखिए NAN हमारा 100 ही दिखा रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन इज 100। क्लियर, हमने आपको बताया था जब इनपुट वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा या बराबर होगा तभी डायोड ऑन होगा। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आपने कितना सेट किया हुआ है, जेनर डायोड का 5.1 वोल्ट, 5.1 सेट किया है ना, जब तक 5.1 नहीं पहुंचेंगे। अब देखिए 2 से हम सीधे चले जाते हैं, 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, या 3 ले लीजिए, 3.4 ले लीजिए एंड ऐड टू टेबल कर दीजिए। ऐड टू टेबल किया, 3.4 पे भी हमारा परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन 100 है। ये आपको टेबल बेटा ये बनानी होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इस पे और आगे चलता हूँ, 4.6 आ गया। ठीक है, 4.6 पे आएंगे और ऐड टू टेबल करेंगे, अभी भी हमारा 100 ही है। अब इसको मैं बढ़ा के सीधे एक मिनट 5.4 के आसपास या 5.2 के आसपास ले जा, 5.4 पे ले जाता हूँ। ठीक है, 5.4 पे आप देख सकते हैं जो जिनर करंट है, आपको देख सकते हैं आईजेड में मिल रहा होगा। यहाँ पे आईजेड मिल रहा है बेटा, सभी को दिख रहा है, Yes, sir. ये Yes, देख sir. सकते हैं आप। जिनर करंट इज ऑल्सो अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। आईजेड की वैल्यू मिली एम्पियर में दिखा रहा है, -2.250। क्लियर, तो अब हमारा आईजेड हमारा चेंज होना शुरू हो गया। देखिए जैसे ही 5.1 को हमने एक्सीड किया, इनपुट वोल्टेज 5.4 पे चले गए ना,
कि 5.1 से जैसे ही ज्यादा हुआ वैसे ही हमारा जिनर करंट हमारी चेंज होनी शुरू हो गई। अभी तक जिनर करंट 0 थी क्योंकि जिनर डायोड ऑन ही नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे ही हमने 5.1 को क्रॉस किया तो जिनर डायोड ऑन हो गया। जैसे इनपुट वोल्टेज हमारा 5.1 वोल्ट को क्रॉस किया, जिनर डायोड हमारा ऑन हो गया, और ऑन हो गया तो देखिए करंट हमारी भी फ्लो कर रही है, जिनर के क्रॉस करंट आ गई। माइनस में क्यों आ रही? क्योंकि रिवर्स करंट। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज माइनस। लोड करंट आपको दिखा रहा है IL 2.5 लोड करंट, और आप देख सकते हैं दो चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। लोड करंट भी चेंज नहीं हो रही है, हमारा फिक्स है, ये थ्रू आउट फिक्स है, ठीक। और परसेंट रेगुलेशन भी हमारा 100% है। इसका मतलब है वोल्टेज हमारा आउटपुट पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हम चाहे इनपुट को जितना चेंज करें, अब हम इनपुट और बढ़ाते हैं, 5 से सीधे आ जाते हैं हम 9 पे आ जाते हैं। वैसे आप और भी रीडिंग ले सकते हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 9 पे गए तो आप देख सकते हैं, एक मिनट, ओके हाँ। सो अब आप देखिए जैसे हम लोग 9 पे जा रहे हैं, ठीक है, तो परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या हो रहा है इसमें? हेलो 55.6। हाँ जी, ठीक है, इसको थोड़ा मैं और बढ़ाता हूँ, मैं और बढ़ा रहा हूँ। देखिए आप वोल्ट मीटर की रीडिंग भी चेंज हो रही, धीरे धीरे वोल्ट मीटर इज ऑल्सो चेंजिंग। क्लियर? वोल्ट मीटर इज ऑल्सो चेंजिंग। क्लियर? यहाँ हम इसको भी ऐड टू टेबल करेंगे, दिस इज ऑल्सो एडिंग इनटू द टेबल। ये देख सकते हैं आप 15.8 चले गए, ऐसे और आगे जाएंगे, इसको भी ऐड टू टेबल करेंगे। 20 तक आपको जाना है, ठीक है। 21.2 पे गए, 23 दिस हो गया, और आगे जाएंगे 20 तक ही जाइए, मतलब इसको 20 वोल्ट तक ही वेरी कराइए, 21 तक ना जाइए, 20 तक ही वेरी कराइए, ठीक है। अब हम इसका प्लॉट देख लेते हैं। इफ यू ड्रॉ द प्लॉट, प्लॉट कैसा बनेगा? वी हैव सफिशिएंट रीडिंग, 20 तक ही आप जाइएगा, मैं 21.2 तक चला गया हूँ, कोई इशू नहीं है। 20 तक आप ले जाइएगा इनपुट वोल्टेज को, एंड इफ यू ड्रॉ द प्लॉट, क्लियर। सो ये प्लॉट बेटा सभी को दिख रहा है? यस सर। Yes, ये sir. आपको जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, यही आपको लगानी होगी, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को एक कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रही होगी, ठीक है। Yes, sir. ये आपको लगाना होगा। ये देखिए रिवर्स बायस है, ये देखिए स्टार्टिंग में हमारा इनपुट वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे रिवर्स में, तो हमारी करंट धीरे धीरे बढ़ रही थी, लगभग कांस्टेंट थी। और यहाँ पे आप देखो दिख भी रहा होगा रिवर्स करंट आपकी नहीं बढ़ रही थी, ये 2.55 ही दिखा रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद हमारा जो है करंट, यहाँ पे देख सकते हैं जब ब्रेक डाउन हुआ है, तो ब्रेक डाउन सभी को दिख रहा है बेटा ये? यस सर। Yes, sir. ओके। और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन के बाद आप देख सकते हैं रिवर्स करंट हमारी इस तरह से सडनली बढ़ना शुरू हो गई है, देखिए, ठीक है। दिस इज द रिवर्स करंट, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नीड टू ड्रॉ। ये आपको प्लॉट, आपको इसकी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी है, ठीक है। तो आपको ये चीज शो करनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? सभी को दिख रहा है बेटा? यस सर। जब मीटिंग आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मीटिंग एंड होने वाली है। ये अभी मैंने सर एक 30 पे हमारा सरप्राइज क्विज है 30 पर। सर 440 पे सर सरप्राइज क्विज है। सर टेस्ट है। नहीं तो बेटा अभी टाइम है, अभी 4:25 हो रहा है, मेरी लैब 4:45 तक है, तो मैं अपनी लैब कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग रीज्वाइन जिसको करना है कर लीजिए, क्योंकि मुझे लैब कंप्लीट कराना है, ठीक है। अभी मेरा शेड्यूल चल रहा है बेटा, मैं अपनी क्लास को नहीं डिस्टर्ब कर सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? So you all are requested kindly rejoin again.